Thank you so much, Shiva, for a wonderful session. So we are really grateful. So, are you inviting people to do the Savasana? People are sending lots of good comments. So, Sorry, people are? sending lots of amazing comments. Oh, okay. Let me just see. Do you want me to see some comments and respond, or maybe not? We have a very limited time and Yes. Okay, so I will see those comments, and thank you everyone for. In fact, I could feel the vibration, the collective vibration of everyone within inside me, and what you felt was not just your own vibrations, but the collective vibration of everybody who was doing that process. So this was a live demonstration of how to connect with the collective vibration place. And thank you very much for listening to me and joining me in this process. Thank you. thank you. Thank you so much. So, yeah. So, our next speaker is Dr. Preeti Nanda. So, Preeti, are you there? Preeti Yes. Sibbal. Yeah, Preeti Simple, sorry. I just saw the name on that. So, No worries. I'll take it ahead from here. yeah. So, Ritu is going to introduce you briefly. Yeah. Thank you, Thank you. Kushbu. Thank you, Shabana. Um, Welcome, Dr. Preeti. Um, for everybody around in the audience, I would just like you to note that we have a functional medicine expert and author and trainer, Dr. Preeti Sibbal, with us, who's going to talk about bulletproof immunity during this, special time that we are all living in, the lockdown. So over to you, Dr. Preeti. Please introduce yourself and go ahead with the session. Thank you for having me here, Kushbu and team. And yes, bulletproof your immunity. That's one word, immunity, which everybody is wanting to know. Just before I start, I wanted to check, is there any preference in language? English, Hindi, or mixed will work? You can do it mixed. I think everybody is comfortable with both. Perfect, great. So, what is this corona, and why is immunity becoming more important at this point of time? आई एम श्योर हमने बहुत कुछ सुना हुआ है अभी, तो व्हेन आई वाज थिंकिंग व्हाट आई शुड बी टेलिंग यू व्हिच एड्स टू वॉट एवर देयर आर सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स व्हिच आर कमिंग up with us, and I thought, let me first share those with you. Now, corona virus, क्या इससे पहले कभी वायरस नहीं आया है? आया है. क्या इससे पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं आई है जिसने एक बारी हमको हिला दिया है? हुआ है. तो इस बार ऐसा क्या अलग हो गया कि सारा लॉकडाउन हो गया है, एंड वी आर सो स्कैर्ड कि इवन रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो इतना डरते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो रिलेटिव्स रिफ्यूज टू डू द लास्ट राइट्स. व्हाट हैज़ चेंज्ड? सो कुछ फैक्ट्स हैं जो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 72% ऑफ ओबीज पीपल आर नाउ सेड कि यार वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, विच इज अ ह्यूज नंबर, अ लार्ज नंबर. बट टू एड टू दिस, 1.2% चिल्ड्रन 1960 में डिजीज थे विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. एंड डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द परसेंटेज टुडे? 52%. सो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी इतनी मेटाबॉलिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है कि एक वायरस जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल एग्जिस्टेंस में है, और जिसकी वजह से शायद हम हैं, हमें इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें और समझें कि यार ये हो क्या रहा है. सो व्हाट आई वांट टू शेयर हियर इज़, वी ऑल नो कि जब लैंड में टिलिंग होती है तो क्या होता है, हम सॉइल को पूरा हिला देते हैं तो टूट जाती है सॉइल, राइट? उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का माइक्रोबायोम इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में होते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, वायरस होते हैं. वो सारे टूट जाते हैं. तो आप देखोगे, इफ़ यू गो एंड सर्च आफ्टर दिस टॉक, कि जब आपकी टिलिंग करते हो आप सॉइल की, नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा वीड्स होते हैं सॉइल में. हम लोग सोचते होंगे कि वीड्स अच्छे नहीं हैं, इसीलिए हम इतना पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वीड्स को मारना चाहते हैं.
यू नो व्हाट लिटरेचर सेज एंड साइंस सेज कि ये जो वीड्स है ना, ये नेचर का एक तरीका है, जो सॉइल हमने खराब की टिलिंग करके उसका माइक्रोबायोम तोड़ा, उसको दोबारा से ग्रो करने का। तो क्या होता है कि ये जो वीड्स होते हैं ये माइसिला सॉइल में बनाते हैं, जो कि फंगाई होते हैं, जो कि दोबारा से सॉइल का माइक्रोबायोम एडजस्ट करके नॉर्मल करते हैं। सिमिलर थिंग हैपन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस हैं, और इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड दैट वी हैव ओनली 26,000 ह्यूमन जीन्स in our body, and we have millions of genes which come from these bacteria and viruses and fungi. We have 3 trillion of these in our body. So in fact, आजकल तो हम ये सोचने लग गए हैं कि we are more a bacterial, fungi and a viral body than a human body. इस सिचुएशन में जब आप देखो कि 10 raised to power 30 टाइम्स वायरस प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, वाटर में, ओशन में, सॉइल में, तो ऐसा क्यों है कि एक वायरस से हम इतना घबरा रहे हैं? तो यहां पे एक बारी ना हम देखते हैं कि टीबी क्या होता है। वी ऑल नो ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में काफ़ी कॉमन है, गवर्नमेंट काफ़ी काम करती है, फ्री मेडिसिन देती है, एंड जनरली इसको पुअर लोगों की बीमारी बोला जाता है, राइट? होता कैसे है ये? डॉक्टर्स में भी काफ़ी कॉमन हो जाता है ये। होता कैसे है ये? होता तब है ये, हम सब में ना HIV वायरस, TB वायरस, कोरोना वायरस प्रेजेंट है। तो जब हम टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि यार PCR ऐसे में हमारा पॉजिटिव आ गया है, इट डजंट मीन एनीथिंग, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पर उसका मतलब कब हो जाता है? उसका मतलब तब हो जाता है जब हम न्यूट्रिशनली डिप्लीट हो चुके होते हैं। तो टीबी कब होता है? ट्यूबरकुलोसिस जनरली गरीब लोगों में ज़्यादा होता है। और कब होता है? जब वो न्यूट्रिशनली डिप्लीट हो जाते हैं। आप देखोगे आपके ड्राइवर्स, मेड्स, ये लोग क्या करते हैं, 6-8 रोटी खाते हैं दिन में और साथ में थोड़ा सा सब्जी खाते हैं। रोटी क्या है? बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में जाते ही शुगर बन जाता है। एंड हाई शुगर क्या है? हाई शुगर तो बिल्कुल इन्फेक्शन को बुलाना है। मतलब इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स कि वाओ यार लाइफ इज सो कूल, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रही है, तो यू डोंट हैव टू डू मच फॉर दैट। Just add a lot of sugar and simple carbs in your diet, and you know the virus will find you definitely, I promise you. So tuberculosis उन लोगों में इसलिए ज़्यादा हो जाता है। क्यों? बिकॉज वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं, उनमें प्रोटीन नहीं बनता है, फैट अच्छा नहीं जाता है, एंड दे गेट टीबी। टीबी आया कब था? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुआ न्यूयॉर्क एंड लंदन में, एंड इंडिया में अभी भी बहुत प्रेवलेंट है। Now similar thing is happening with corona. हार्वर्ड में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कि कोरोना अगर हो जाए, राइट, तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा या हमारी ज़्यादा हमें साइड इफ़ेक्ट्स देगा। एंड व्हाट वाज फाउंड? इट वाज फाउंड दैट diabetics and obese people have 20 times more risk of getting serious complications from corona, right? But इतना ही नहीं, 2 और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई जिससे कि उतना ही ज्यादा रिस्क है हमें जितना हमें डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हाइपोथायराइड, एस्थमा, एलर्जी, COPD अगर हमें है और हम उसकी मेडिसिन पर हैं तो हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो स्टडी में लोग लिए गए, ये वो नहीं थे जिनकी शुगर हाई थी, ये वो थे जिनकी HbA1c और शुगर कंट्रोल थी विद मेडिसिन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ ये जानना कि दवाई से कंट्रोल हुई हुई डिजीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि डिजीज़ नहीं है, तुम्हारा रिस्क कम है। ये सब क्या है? लाइफस्टाइल डिजीजेज है। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने अपनी बॉडी की इतनी टिलिंग कर ली है कि हमने पूरा अपना माइक्रोबायोम खराब कर दिया है।
Can you imagine? This time, for this lockdown, I at least don't think corona is the cause. I firmly believe we human beings are the cause for this calamity. Right? And now let's see वो कौन से 2 reasons आए हैं जो कि बोल रहे हैं कि that is what has led us to this. First, air pollution. जिन एरियाज में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है. बट इंटरेस्टिंगली देयर इज दिस फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर इन यूएस नेम्ड जैक बुश. आप प्लीज़ उसको गूगल करिएगा. 2 years बैक उसने टेड टॉक दिया जिसमें उसने एग्जैक्टली बोला कि सेंट्रल चाइना में कैलामिटी आने वाली है इन सम टाइम. एंड उसने कोई ज्योतिष नहीं पढ़ी हुई है. ही इज़ नॉट somebody who looks at hands, palmistry or astrology. No. Scientifically, when he was doing his research, he realized कि सबसे ज़्यादा pollution वहाँ पर है. And second चीज़ क्या है वहाँ पर सबसे ज़्यादा? Pesticide use, which we call glyphosate. तो पहला क्या? Pollution. 2.5 माइक्रोन से जो कम एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारा नोज एंड माउथ रोक नहीं पाते हैं एंड इसीलिए वो अंदर चले जाते हैं. व्हाट हैपन्स विद दिस इज साइनाइड एंड लेड जो इसमें बहुत होता है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है. और बहुत इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं जो फ्रंट एंड पे खेल रहे हैं, राइट. सो वेरी रिसेंटली एक यूएस ने डॉक्टर ने फ्रंट में आके बोला है एंड बहुत सारे और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे पेशेंट को फीवर नहीं हो रहा है, मेरे कोरोना पेशेंट को नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ब्लू हो जा रहा है और अगर हम उसे वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं तो उसको डेथ हो जा रही है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो वायरस है हमें बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ. वायरस जो है हिम में से ऑक्सीजन को कनेक्ट नहीं करने दे रहा है. क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, हमारे ऑर्गन्स में SpO2 कम हो रहा है तो ब्लूनेस आ रही है. और क्योंकि हमारा हीम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो जब हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालते हैं इवन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डजंट हेल्प एंड थोड़ी देर में कैलामिटी हैपन्स, राइट. नाउ सेकेंड थिंग विच इज हैपनिंग इज ग्लाइफोसेट. अब ग्लाइफोसेट का मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं. हम पहले ना और पेस्टिसाइड्स यूज करते थे बट 1960 में ग्लाइफोसेट यूज करने लगे हम. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये सोचा गया कि ये कम देर तक एनवायरनमेंट में रहता है इसलिए ये हमारे लिए सेफर होगा. 1996 में इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड 2015 से ऑनवर्ड्स इसको कार्सिनोजेनिक कहा जा रहा है स्टडीज में. और मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताऊं. लास्ट ईयर में यूएस में आई वॉज अटेंडिंग अ फंक्शनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस इन लास वेगस एंड आई मेट द फाउंडर हु स्टार्टेड द A4M which is the one of the top organizations which teach functional medicine. And you know what she said? I told her I've written a book on what doctors should know about diabetes reversal. She was extremely excited and what she told me was, Preeti, glyphosate पढ़ा है आपने? By the time that glyphosate goes from your mouth to your stomach and your body, it has done the harm it could do to your body. That is how bad it is. एंड हमारी वीट में, हमारे कॉर्न में, हमारे सोए में, हमारी वेजिटेबल्स में सब में ग्लाइफोसेट यूज हो रहा है. पहले क्या होता था? ये पहले और बाद में यूज होता था पर अब जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है ये तब भी यूज होता है. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों डायबिटीज, ओबेसिटी बच्चों में, बड़ों में इतनी बढ़ रही है. और यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी. आई एम श्योर आप सबने पढ़ा होगा कि इंडिया में पीछे कुछ स्टडीज आई थी कि यंग लोगों में भी कोरोना बहुत हो रहा है. And that is because of the metabolic syndrome we Indians have, because हम genetically थोड़े ज़्यादा prone है इस चीज़ को लेकर. एक और अभी ऑब्जर्वेशन की जा रही है जो कि कह रही है कि 36 years एवरेज लाइफ स्पैन है यूएस एंड चाइना दोनों की, बट डेथ टोल यूएस में चाइना से बहुत ज़्यादा है. अगेन क्यों? बिकॉज मेटाबॉलिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है लोग. तो
बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं, एक हम एयर पोल्यूशन का ध्यान रखें, सेकंड एंड हम रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें, एंड सेकंड इज कि हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस खाएं जितना खा सकते हैं, बट अदरवाइज बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स को वॉश करके या तो ओजोन क्लीनर से या बेकिंग सोडा डालकर या जस्ट वाटर में 30 मिनट्स रखने के बाद ड्राई करके उसको यूज करें. सो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूं आपके साथ. सो अब हैविंग सेड दैट, तो फिर हमें इतना डरने की क्या जरूरत है? Yes, what is happening in COVID times is the only difference. तो जब हम ये बात करते हैं कि जी ये ऐसे इफेक्ट कर रहा है, तो क्या फर्क हमें दिख रहा है एक मेटाबॉलिकली कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान में और एक हेल्दी इंसान में? इज इट्स इम्यूनिटी. तो जब कोरोना वायरस आता है वो देखता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, और जैसे ही वो आपकी इम्यूनिटी देखता है वो डिसाइड करता है कि इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. एंड देयरफॉर हमें बहुत फेयर करने की जरूरत नहीं है इसके लिए. हाँ, हमें कॉशियस रहने की जरूरत है. अभी तक एक्सपीरियंस ने जितना भी हमें शो किया है, इट जनरली टेक्स 2 सीजन्स फॉर द वायरस टू एडजस्ट, या वो हमारी बॉडी का पार्ट बन पाता है. सार्स में, मार्स में हम सब ने देखा कि 2-3 बार स्पाइक्स आई एंड 2 साल में वी वर एबल टू हैंडल दैट वायरस. एंड बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना के लिए भी बाय नेक्स्ट जून वी विल बी क्लियर एंड वी वुड बी थिंकिंग वाओ इट्स अ पार्ट ऑफ अस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइक ऑल द अदर वायरसेस टिल नाउ, राइट? बट तब तक व्हाट वी नीड टू डू इन एडिशन टू जो गवर्नमेंट बोल रही है लॉकडाउन, हमें बाहर कम जाना है, हमें मास्क लगाना है, हमें हैंड वॉशिंग बहुत अच्छे से करनी है. एंड प्लीज़ गूगल करके या आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं हैंड वॉशिंग कैसे करनी है, बिकॉज 20 सेकेंड्स के लिए हैंड वॉशिंग करनी है एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड ये करने का तरीका क्या है, या तो आप हैप्पी बर्थडे टू यू 2 बार बोलें जब आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं और बच्चों को भी सिखाएं, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोइम बोल लें, या कोई भी अपना फेवरेट गाना देख लें जो 20 सेकेंड्स तक चलता है. एंड अब स्टडीज कह रही हैं कि 10 से 12 टाइम्स अगर आप दिन में हैंड वॉश कर लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ हाउ you can keep yourself safe from corona. Now let's come back to immunity. अब हम इम्यूनिटी के लिए क्या करें इस टाइम पर जब वो इतनी वाइटल हो गई है, राइट? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूध में हल्दी डाल के पी लेने से या 1 या 2 सप्लीमेंट्स लेकर हमारी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी. यहां पे कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं? इफ यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि 3-4 सप्लीमेंट्स ले लिए एंड हमने ये कर लिया, हल्दी वाला दूध पी लिया तो हमारी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी. ये इतना सिंपल नहीं है. हम जो पूरा दिन खाना खाते हैं वो सिर्फ खाना ही नहीं होता, वो मैसेंजर की तरह काम करता है हमारी बॉडी में और डिफरेंट मैसेजेस भेजता है. इसलिए बहुत वाइटल है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से खाएं. आजकल लॉकडाउन में क्या हुआ है, हर कोई मास्टर शेफ बन गया है. बट आयरनी सिचुएशन की ये है कि मास्टर शेफ बनने में हम जनरली डेजर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स ट्राई कर रहे हैं, केक्स बेक कर रहे हैं, फ्राइड फूड बना रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं. बट ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं रही हैं. ये सारी चीज़ें मैसेजिंग जो बॉडी में दे रही हैं वो सही नहीं दे रही हैं. तो जब भी हम अपनी प्लेट सेट करें तो सिंपल रूल होना चाहिए कि प्लेट को हम 4 पार्ट्स में बांट दें. एक पार्ट में सैलड हो विच इज रॉ वेजिटेबल्स, एक पार्ट में कुक्ड वेजिटेबल्स हो, एक पार्ट में हमारा प्रोटीन हो और एक पार्ट में कार्बोहाइड्रेट हो. एंड पूरे खाने में अच्छा फैट होना बहुत ज़रूरी है. अब जो कार्बोहाइड्रेट हो वो रोटी चावल के अलावा हम किनुआ, अमरंथ, रागी ये सब भी ऐड कर सकते हैं, हमारे सारे मिलेट्स ऐड कर सकते हैं,
हम इंडिया में रहकर बहुत ब्लेस्ड हैं। क्योंकि हम क्यों ब्लेस्ड हैं? क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटी ऑफ फूड है अवेलेबल कि हम अपने माइक्रोबायोम का ध्यान रख सकते हैं। एंड अगर कोई एक और चीज कर सकता है तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन में आपको फिर क्या 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 करके नहीं पूछने की जरूरत है। एंड दैट वन थिंग इज इफ यू कैन हैव 7 कलर्स ऑन योर प्लेट इन एवरी मील। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि 7 कलर्स आपकी प्लेट पे हो सकते हैं हर मील में? अगर लगता है तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि 7 कलर्स हो सकते हैं हर तीनों मील्स में तो प्लीज राइट चैट यस। यस, लॉट ऑफ अस थिंक यस बट समथिंग नॉट ऑफ्टन। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। ब्रेकफास्ट में आप बादाम, किशमिश, काजू चाहे एक एक पीस डालें और साथ में सीड्स डाल लें, और जो भी नॉर्मल ब्रेकफास्ट ले रहे हैं ले लें, आपके 7 कलर्स हो जाएंगे। लंच में आप सैलेड में 4-5 वेजिटेबल्स चाहे थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे, आपके कलर्स हो जाएंगे। डिनर में आप सैलेड में फ्रूट डाल सकते हैं, सूप बना सकते हैं जिसमें चॉप करके छोटी छोटी वेजिटेबल्स डिफरेंट कलर की डाल सकते हैं, एंड आपके 7 कलर्स हो जाएंगे। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट बट यस यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। एंड बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने ये देखा है कि मेरे जो पेशेंट्स आते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं एंड दे से दे आर फजी ईटर्स, दिस बिकम्स अ गेम फॉर देम। एंड जब बच्चा कलर्स काउंट करता है तो उसको खाने से जो एक उसका रिलेशनशिप बनता है वो आप उसको पूरी लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देते हैं। सो डू ट्राई दिस एंड एनहांस योर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी में क्या क्या आता है? इम्यूनिटी में एक्सरसाइज आती है। कितनी एक्सरसाइज करनी है हमको? 10 मिनट दिन में 3 बार बांट के भी अगर आप कर लें तो वी आर हैप्पी। पर एक्सरसाइज में कॉम्बो क्या होना चाहिए? एरोबिक्स होना चाहिए, वेट्स होने चाहिए और ब्रीदिंग होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तीनों चीजें करें। अगर आप सिर्फ एरोबिक्स कर रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर इट्स नॉट सफिशिएंट। एंड यहां पे ना मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहती हूं। You know, women requirements are different for immunity than men requirements. मुझे म्यूजिक किसी के उसमें प्ले करना है, आपको पता है? So women की requirement क्यों different होती है? इस पे बहुत साइंस हुई हुई है। एंड इसलिए different होती है क्योंकि women ने next generation को birth देना पड़ता है, तो उनका immune system ज़्यादा active होता है। पर उस एक्टिव इम्यून सिस्टम से कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि आप देखोगे ऑटो इम्यून डिजीजेस वुमेन में ज़्यादा होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस कौन सी हैं? वो सारी डिजीजेस जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब इससे होता क्या है? क्योंकि वुमेन में इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए वो ज़्यादा देन राइट कैंडिडेट बन जाती हैं, उनको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली what happens is, I think women by nature, they keep thinking about others, family members, loved ones, and keep their health at the last priority. My message for all the women who are here today listening to me is, this time is loudly and clearly telling us that we should take care of our health, we should take care of our immunity, and especially for women, they should take care of their immunity better. And you know, बहुत ही सिंपल तरीका है women कैसे पता कर सकती हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं? From the quality of the periods you have. अगर आपके periods टाइम पर आ रहे हैं, अगर आपके periods में आपको पीरियड से पहले प्री मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा है, अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम सही है। पर अगर इन सब में से कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, किसी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट को मिलिए, किसी को भी मिलिए, बट देखिए कि व्हाट यू कैन करेक्ट।
एक सिंपल टिप जो मैं यहाँ देना चाहूँगी, जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ बहुत यूज़ करती हूँ, इज़ 1, इंक्लूड गुड फैट्स इन योर डाइट. इतने सालों से हम फैट से डरने लग गए हैं, बट अब सारा साइंस ये कह रहा है कि अच्छा फैट खाना अच्छी बात है, प्रोसेस्ड फैट खाना खराब बात है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन फैट, please visit my blog, Dr. Preeti's blog, and check. I am doing a series on different types of fats currently. I'm sure you will get some very, very relevant information there. But coming back to immunity, good fat cell membranes बनाते हैं, हमारे सारे हार्मोन्स बनाते हैं, and हमारे गट को क्लीन रखते हैं. For example, now studies are saying that कोकोनट ऑयल, देसी घी आर वेरी गुड फॉर गट माइक्रोबायोम. वो क्या करते हैं, खराब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को मार देते हैं एंड दूसरों को ठीक रखते हैं. सेकंड, ड्राई फ्रूट्स में जो हमें नट्स मिलते हैं, सीड्स में मिलते हैं, दे आर वेरी हेल्दी. हमारा वाइट बटर, आर फेवरेट. प्लीज परांठे के ऊपर 2 चम्मच डाल के खाने से बिल्कुल मत डरना. आपने ये सुना होगा ना, जहर जहर को काटता है. If you have heard this statement, please tell me, yes, you have heard it. I am waiting. Until then, potatoes are not good fats. Potatoes are carbohydrate. And there is a way to eat potato because potato fiber में बहुत rich है और इसलिए हमारे gut microbiome को help करते हैं. Wow! So, जहर जहर को मारता है, वैसे ही फैट को मारता है. तो अगर आपके दिमाग में कभी भी फैट खाते टाइम ये ख्याल आता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा बेली फैट बढ़ जाएगा, या मैं तो वैसे ही इतना मोटा हूं, प्लीज याद रखिए, जहर जहर को काटता है. गुड फैट्स, इफ यू ईट, योर बॉडी लर्न्स टू डाइजेस्ट फैट, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, आई हैव अ बुक, साइक्लिक कीटो, ऑन किंडल. Go and see it and see what is it that I'm talking about fats, because it is very relevant in today's life. Recent literature is showing that keto diet, and especially when you can make it cyclic, it helps boost your immunity. How cool is that, right? Good fat में coconut oil आता है, देसी घी आता है, white butter आता है, seeds आते हैं. एंड जब मैं बता रही थी जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एक चीज़ जो बहुत वर्क करती है फैट्स लेने के साथ साथ, सेकंड इज प्रोटीन. बहुत सारे ऑटो इम्यून पेशेंट्स, थायराइड जिनको होता है, विमेन स्पेशली में हैशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है, जो कि ऑटो इम्यून वर्जन है थायराइड डिजीज का. थायराइड हार्मोन के लिए टायरोसिन नाम का प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन में बनता है. एंड इंडियंस में ये स्टडी की गई है कि वी आर वेरी वेरी लो इन प्रोटीन. अब लो इन प्रोटीन हम कब होते हैं? या तो हम तब होते हैं जब हम प्रोटीन कम खा रहे होते हैं, और या हम तब होते हैं जब हम प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो जनरली अगर आप देखोगे, बहुत मिथ है कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन कम मिलता है. नहीं मिलता है कम. आपके खाने में राजमा, छोले, दाल, आटा, सीड्स, नट्स, बहुत प्रोटीन मिल सकता है आपको. 1 per kg, 1.0 grams per kg is what you require, and आपको आराम से मिल सकता है. बट प्रॉब्लम क्या है, आजकल स्ट्रेस की वजह से हमारे पेट में एसिड कम बन रहा है. तो जितने लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, प्लीज एंटासिड मत खाइए बिना अपने फंक्शनल मेडिसिन या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाए. क्यों? बिकॉज कम एसिड एंड ज्यादा एसिड के सेम सिम्टम्स होते हैं. एंड आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हमारा एसिड बहुत कम हो रहा है. उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो बॉडी को मिलता नहीं है, तो हार्मोन्स नहीं बन पाते. एंड इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि व्हेन यू गो इन द मॉर्निंग टू क्लीन योरसेल्फ, सी कि आपके जो नट्स खाए हैं, मूंगफली खाई है, बादाम खाया है, राजमा खाया है, वो ऐसे के ऐसे तो नहीं निकल रहे क्या आपके मोशन में? अगर निकल रहे हैं, हाई टाइम, आपको एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, हाई टाइम कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स व्हाट यू ईट इज इंपॉर्टेंट, बट वो जाके कैसे बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एसिमुलेट हो रहा है, उसके कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए.
उसके अलावा यस, गट इज आवर सेकंड ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी इसकी बड़ी अच्छी फिलॉसफी है कि गट में बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई इकट्ठे टीम बना के बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ह्यूमन बीइंग इतना इंटेलिजेंट है, वो हमें कभी भी निकाल देगा, तो हम इसको अगर घर बनाएंगे तो क्या ये अच्छी बात है? एंड उसी टाइम क्या हुआ, जो उनका लीडर था उसने बोला डोंट वरी, हम इसके माइंड को इतना कंट्रोल में रखेंगे गट में ही रहकर कि ये कभी हमें बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। हम चाबी ऐसे घुमाएंगे और ये डिप्रेस हो जाएगा, हम चाबी ऐसे घुमाएंगे तो ये स्मार्ट वर्किंग करने लग जाएगा। एंड इसलिए अगर हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है तो हमें जो हमारा माइक्रोबायोम है गट में, उसका बहुत ध्यान रखना है, राइट। एंड मैं बच्चों को जो मेरे पास आते हैं क्लिनिक में ऐसे समझाती हूँ, तो इसलिए आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हैविंग सेड दिस, सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? अनफॉर्चुनेटली मुझे बैड बनना पड़ रहा है यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, रात भर टीवी देखते रहते हैं, अपने सर्कीडियन रिदम के हिसाब से नहीं सोते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। स्टडीज ने शो किया है कि अगर आप एक रात इरेगुलर सोते हो तो नेक्स्ट डे आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ होता है, और इंसुलिन बढ़ा हुआ मतलब आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी, आपका वेट कम ज्यादा होना, और ये सारी चीजें इंडिकेटिव हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आप सोएं ठीक से। अगर बच्चों की इम्यूनिटी ठीक रखनी है और खाना उनको खिलाने और टाइम पे सुलाने में से आपके पास एक वोट है, तो चूज स्लीप, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस। आजकल स्पेशली हम लोग बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं। आज सुबह हमारी सोसाइटी में फर्स्ट पॉजिटिव केस आया है। 4 दिन पहले सोसाइटी ने मेड्स अलाउ की थी, घर अभी सेटल हो रहा था, एंड टुडे दे हैव अगेन सेड कि मेड्स आर नॉट अलाउड, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। अब एक जने को आज कोरोना आया है, पिछले 14 दिनों में वो कितने लोगों को मिला होगा? कितने लोगों को प्रोबेबिलिटी है कि कोरोना हो सकता है? और अगर हम ऐसे ही एंग्शियस होते रहेंगे तो हम अगले जून तक कैसे पहुंचेंगे? वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस डिजीज को, वो सिर्फ एंजाइटी बढ़ा रही है, प्रॉब्लम बढ़ा रही है। हमें अप्रोच करना है। हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है? अगर आप सोचते हैं कि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है, और अगर आप मैरिड है और आप अपने स्पाउस को बदल के कोशिश कर करके थक गए हैं, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड एक्सेप्टेड कि मैं उसको तो नहीं बदल सकता, खुद को बदलूंगा, तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। सो हम कोरोना में क्या कर रहे हैं? हम समय सदगुरु जी का इनर इंजीनियरिंग कोर्स कर रही हूँ आजकल, एंड वो बहुत बोलते हैं कि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि आपके गुस्से का कारण सामने वाला नहीं है, आपके गुस्से का कारण सिचुएशन नहीं है, आपके गुस्से का कारण आपका रिएक्शन है टू दैट सिचुएशन, उस दिन आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यस और नो? हम कोरोना के टाइम पे क्या कर रहे हैं? I called some of my patients recently and I said, आप हाइपरटेंसिव हो, आपने पिछले 3 महीने में अपने बीपी को ठीक करने के लिए क्या किया? मैम सोच तो रहा हूं पर अभी तक कुछ कर नहीं पाया, पहले बताओ कोरोना से कैसे बचूं? I spoke to another patient, डायबिटिक है, आपको पता है डायबिटीज रिवर्सिबल है। मैं आपको दिखा चुकी हूं 300 केस स्टडीज जब आप मेरी क्लिनिक में आए थे, जिनका मैंने इंसुलिन तक बंद कर दिया है। आपने क्या किया उसके लिए अभी तक? मैम अभी तो यही नहीं समझ आ रहा काम कैसे होगा, घर में बच्चों का काम कैसे होगा, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी? एटलीस्ट आई स्ट्रांगली फील इट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। हमें अपने अंदर देखना है।
व्हाट हैव वी डन टिल नाउ? अगर हमने स्ट्रेस से अपनी हालत बुरी करी है या हमने अपनी आदतों से करी है, हाई टाइम, लाउड एंड क्लियर हमें वार्निंग मिल रही है. अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो भगवान वार्निंग दे रहे हैं. अगर आप नेचर में बिलीव करते हैं तो नेचर वार्निंग दे रहे हैं. आप जिस भी चीज में बिलीव करते हैं, बट आप आंखें नहीं बंद कर सकते इस बात से कि अगर हम अपनी आदतें अब नहीं बदलेंगे, it will be too late, right? So very important कि हम अपना इंटरनलाइजेशन करें, इंटरनल देखें. एंड कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज स्ट्रेस से जरूर कनेक्टेड है, स्ट्रेस से जरूर कनेक्टेड है. So I will want all of us to do a simple exercise with me on stress. So just close your eyes, sit straight. अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो अपने पैर बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे रख लीजिए, आराम से बैठिए और अपनी आईज बंद कर लीजिए. अपने हाथ अपने नीज पे रख लीजिए एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन. एंड जब आप ब्रेथ लें तो ध्यान रखिए कि आपका एब्डोमेन बाहर आना चाहिए. लंबा सांस लीजिए अंदर. इसको टू द काउंट ऑफ 7 होल्ड करना है आपने सांस. 1 2 3 4 5 6 7. अब धीरे धीरे एक्सेल करेंगे और 8 काउंट तक एक्सेल करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब दोबारा इनहेल करेंगे टू द काउंट ऑफ 4. 1 2 3 4. Now hold till the count of 7. 1 2 3 4 5 6 7. Now exhale to the count of 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now when you inhale to the count of 4, think that you are getting oxygenated and lot of energy is going inside your body. When you hold your breath to the count of 7, imagine that all the oxygen which you have taken in is healing your organs and giving energy to them. Now when you slowly exhale, imagine your body collecting all the toxins and bringing it out and exhaling it out. Please slowly open your eyes. Now this is Wim Hof's breathing and this has been studied for more than 20 years. And बोला जाता है कि अगर आप 5 ब्रेथ्स ऐसे ले लेते हैं तो आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल. सो प्लीज सुबह उठते टाइम और रात को सोने से पहले only 5 breaths which will not take more than 3 minutes. Super. Implement this because मैं आपको बता रही हूं, अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन नॉर्मल है, आपकी लाइफ में मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाएगा, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, कम टाइम में ज्यादा मनी अर्न कर पाएंगे, मनी को ठीक से स्पेंड कर पाएंगे. तो अगर एक चीज कर सकते हो, आई एम नॉट आस्किंग टू मच, 3 minutes, give your body the energy, bring out all the toxins, cyanide, lead जो हमें environment से मिल रहा है,
उसको बाहर निकालने की पावर हमें दी है भगवान ने। इमेजिन, इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम एक पूरी आर्मी है हमारे अंदर। वी ऑल नो सारी कंट्रीज आर्मी रखती हैं और आर्मी पे कितना स्पेंड करती हैं। यस और नो? इज देयर एनीबडी लिसनिंग टू मी जिसको ये नहीं पता कि कंट्रीज आर्मी रखती हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए और उस पर इतना स्पेंड करती हैं? प्लीज राइट यस इफ यू नो दैट आर्मी होती क्या है। प्लीज राइट यस अगर आपको ये पता है कि आर्मी होती क्या है। आपको पता है आर्मी पर्सनल्स का कितना स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रेजिमेंट होता है, कितने डिसिप्लिन में वो लोग रहते हैं, और उनकी वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं। एंड हम उनके लिए बहुत अप्रिशिएटिव भी होते हैं। पर समहाउ मुझे ऐसा लगता है, मैं भूल गई थी, मुझे नहीं पता आपका, कि मेरे अंदर भगवान ने मुझे एक पूरी आर्मी दी है जो मेरा ध्यान रखती है। जब मैं ये कहती हूं लव योर सेल्फ, या जब मैं ये कहती हूं कि मैं तो अपनी करीना कपूर हूं, मुझसे ज्यादा सही तो कोई है ही नहीं जिंदगी में, तब मैं ये भूल जाती हूं कि भगवान ने जब मुझे बनाया या क्रिएटर ने जब मुझे क्रिएट किया तो मैं उसकी सबसे प्रेशियस क्रिएशन हूं, राइट? एंड इसीलिए मेरी केयर, मेरी रक्षा के लिए क्रिएटर गेव मी अ फुल आर्मी। और उस आर्मी के लिए मुझे क्या करना है? मुझे 3 मिनट ब्रीदिंग करनी है, मुझे जो खाना खाना है बस ये सोच के खाना है कि यार 7 रंग प्लेट में है कि नहीं है, क्या वो खाने में जान है कि नहीं है, एनर्जी है कि नहीं है। मुझे बैठने के लिए नहीं बनाया मेरे क्रिएटर ने। जब बनाया तो मैं शिकार करती थी, मैं अपना खाना खुद ढूंढती थी, मैं अपने सारे काम खुद करती थी, मेरी मेड्स नहीं थी, मेरे पास ये लग्जरीज नहीं थी तो आज हैं। मैं गाड़ियों में बैठ के गंदी हवा, जो हीट में जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो जो ब्रोमाइड निकलता है, साइनाइड निकलता है, वो नहीं इनहेल करने के लिए बनी थी। बट इंटरेस्टिंगली हम ये भी नहीं कर पा रहे। हाई टाइम दैट वी लुक इनसाइड अस। माय सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, एज डॉक्टर्स हम बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं कर पाते। 25 साल मैंने मेडिकल इंडस्ट्री में काम किया है। मैं 89 बैच अमृतसर मेडिकल कॉलेज से हूं। 25 साल बाद जब मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत मैकेनिकल हो गया है मेरा काम, मैं सैनिटेशन से लेके, खाने से लेके, एक्सरसाइज से लेके, स्ट्रेस पे बात ही नहीं करती हूँ लोगों के साथ, और एक पिल दे देती हूँ और सोचती हूँ कि उससे मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा। इससे बुरा या बड़ा कोई भ्रम नहीं हो सकता जो आज हमें इस सिचुएशन तक ले आया है, जब हम लॉकडाउन में बैठे और हमें पता नहीं है हम खोले तो कैसे खोले। सो प्लीज, so last 5 years I've been studying. I studied from US. I spent 40 lakh rupees on my education just to tell people कि it's not too much we are asking. हमसे नेचर या हमारा क्रिएटर दिन में 10-20 मिनट मांग रहा है, एक माइंडफुल स्टेट मांग रहा है, प्यार मांग रहा है। किसके लिए प्यार मांग रहा है? अपने लिए प्यार मांग रहा है, राइट? सो प्लीज सिट, थिंक थ्रू, अपने साथ बैठो, एक डीप डाइव सेशन करो और देखो अपनी और अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के लिए क्या बाहर वाली चीजों पे डिपेंड करना है या अपने अंदर की पावर को जगाना है। यू हैव एवरीथिंग विद यू. You have everything with you. I can go and talk on this topic for days because इतना कुछ है बात करने के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ, पर मैं अभी आपको एक एक्सपीरियंस के थ्रू लेके जाना चाहूंगी जिसके बाद आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. So, you know how I look at this. जब एक छोटा बेबी बॉर्न होता है, so can all of you just close your eyes and listen to what I'm saying and try to visualize मैं जो भी बोल रही हूँ. राइट जब आप पैदा हुए थे, यू वेर इनसाइड योर मदर्स वूम. वर्ल्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल. मदर की हार्ट बीट बिल्कुल आपकी हार्ट बीट के पास थी. आप बिल्कुल सेफ, सिक्योर, हैप्पी थे. बहुत ही अच्छी जिंदगी चल रही थी. आपको सुबह जब दिन होता था लाइट दिखती थी, मदर उठती थी, हलचल दिखती थी.
रात को जब डार्कनेस होती थी तो पीस होता था और आप प्यार से अपनी मदर के साथ सो जाते थे। कितनी कंफर्टेबल, कूल, काम, हैप्पी जिंदगी थी। एंड फिर सडनली टाइम ऑफ डिलीवरी कम्स और आपको इतने झटके लगते हैं, आप एक डार्क टनल से निकलते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइफ जा रही है, पर सडनली वो डार्क टनल में सारा जो माइक्रोबायोम होता है मदर का, वो आपकी स्किन पे आकर आपको एनरिच करता हुआ आपको बाहर निकालता है ब्यूटीफुल वर्ल्ड में, विद by and giving you everything you need to live a happy life. आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको अपनी मदर की आइरिस आंख दिखती है, वो स्माइल दिखती है और आंख में इतने सारे कलर्स दिखते हैं कि आपको लगता है वाओ क्या ब्यूटीफुल जिंदगी है। अपनी मदर के बालों में पूरा रेनबो दिखता है जब आप आंखें खोलते हो एंड आप सेंस करते हो कि वाओ मैं कितनी अच्छी जगह में पहुंच गया हूं। और धीरे धीरे आप ऐसे एंजॉय करते करते कब हम इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हम गाड़ियों में पॉइजन अपने अंदर ले रहे होते हैं, हम खाना खराब खा रहे होते हैं, हम रात रात को जागकर अपने सर्केडियम रिदम को तंग कर रहे होते हैं और हम वो ब्यूटी को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं जिसके लिए हम इस जिंदगी में आए थे। हम बड़े होते हैं, इमेजिन कोरोना से इन्फेक्ट होकर हम आईसीयू में जाते हैं एंड वहाँ पे हमारे वाइटल सारे गिरने लगते हैं नीचे और हम सडनली उस साइड ऑफ लाइफ में पहुँच जाते हैं और हमें लगता है वो लाइफ हमें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, अच्छी है। एंड मीनवाइल क्या होता है कि डॉक्टर हमें रिससिटेशन करके वापस इस लाइफ में ले आता है और जब वो इस लाइफ में ले आता है तो हम उसको बोलते हैं डॉक्टर मैं रेडी हूं जाने के लिए, अब मेरा दूसरी लाइफ वेट कर रही है, मैं तो इस बायोलॉजी फेंस में या इस केज में थोड़ी देर के लिए आया था। आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूं लाइफ को बट मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूं। हमें कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहिए इस टाइम पर, हमें इवोल्यूशन चाहिए अपने अंदर वाली बीइंग के साथ, हमें इवोल्यूशन चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ, अपनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट के साथ, ताकि वो सब हमारी बायोलॉजी के साथ लाइन में सिंक करे, ताकि हमारे अंदर वो खुशी हम फिर से महसूस करें जो जब हम इस लाइफ में आए थे तब महसूस करते थे, ताकि हम एक दूसरे से प्यार कर पाएं, ताकि हम में जो एम्पैथी होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग्स की तरह वो वापस आ पाए, ताकि हम उन चीज़ों की तरह ना पीछे भागें जिनकी वैल्यू ही नहीं है लाइफ में। और मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि जब भी हम इस कोरोना से बाहर निकलें, इस लॉकडाउन से बाहर निकलें, तो हम वापस पुरानी तरीकों में मत जाएं, हम कुछ नया सीखें, हम अपने आप को प्यार करना सीखें, हम ब्यूटी को एडमायर करना सीखें, हम इस जिंदगी में वो सब प्यारी चीज़ें, आसपास के लोग, उनकी स्माइल, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना सीखें, अच्छा खाना, अच्छा सोना, ब्रीथ करना प्रॉपरली, हम उन चीज़ों का लुत्फ उठाना सीखें। मेरी सीरियस रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ इसको विजुअलाइज करिए, प्लीज़ देखिए, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल एंड वी कैन क्रिएट अमेजिंग एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग इट, आई प्रॉमिस हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और हम इस कोरोना से तो क्या, किसी भी ऐसे वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया से जो कि हमारे साथ हैं, हम उनके बिना कुछ भी नहीं हैं, बहुत आराम से जी पाएंगे। मत भूलिए हम ट्यूबरकुलोसिस, सार्स, मार्स सबके साथ जी रहे हैं, HIV, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब में वो सब है, पर क्योंकि हम अपनी लाइफ की ब्यूटी को देख रहे हैं इसीलिए
हमें वो चीज़ें तंग नहीं कर पा रही है। तो आई थिंक टाइम हो रहा है, क्वेश्चंस लूँगी मैं अब, बट मैं सिर्फ इस चीज़ के मैसेज के साथ आपको छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ विजुअलाइज करिए। लाइफ इज़ अमेजिंग, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जो हमें बोलने आई है, आई लव यू, आई केयर फॉर यू। इसीलिए मैं तुम्हें ये दिखाने आई हूं कि तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी में। टिलिंग कर रहे हैं हम अपनी सॉइल की, वीड्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, और वो वीड्स नेचर इसलिए दे रही है ताकि दोबारा सब कुछ न्यूट्रलाइज हो पाए। डू नॉट पैनिक, डू नॉट वरी, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जैसे कोरोना को देखती हूँ वैसे ही देखती हूँ जैसे मैं फंक्शनल मेडिसिन में डिजीजेस देखती हूँ और वो रिवर्स करती हूँ। मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस वाई समझ जाइए, सोल्यूशन आपके पास है। याद करिए जब आप पैदा हुए थे, एंड जस्ट उस खुशी और उस एक्सपीरियंस में खो जाइए। Life is beautiful. Thank you very much. I hope I spoke something which made sense to you. Lot of sense, Dr. Preeti. Great. So I have one offer for all of you. 5 days WhatsApp program I offer for 8,100 rupees. I am offering for all of you today in only 499 rupees. 5 days of everything what I tell people. अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो कैसे 15% में आप नहीं पहुंचोगे। Please get more details from Khushbu, and if you want, I'll be happy to serve you with more things. I'm open for questions. Yes. Yes, there are few questions there. Yeah. So it is, my blog details are Dr. Preeti/blog you can do. Second is, if you go on my channel, YouTube channel, which is Food, Medicine and Lies, and if you subscribe to that, we will add you to our blog list and you will get our blogs regularly. Can you repeat the link, please, Dr. Preeti? Food, Medicine and Lies. No, your blog details. Blog details, Dr. Preeti. Preeti is Priti. Okay, that's it? Yeah, Dr. Preeti-blog. Yeah. All right. Yes. Yes. Yeah. There on the chat box that I can see. So there are people who are asking for how to handle obesity. So yes. So obesity. How to handle obesity? Remember, obesity is a mind game. If you think कि यार 5 महीने में या 5 दिन में मुझे 5 किलो कम करना है, don't do it. It is a game plan. Right? Try whatever works for you, but just remember it is a game plan. Right? Do what sort of treatments do you conduct? So I work on the why approach. हुआ क्यों है आपको? और हुआ क्यों में जनरली जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं हमारी, जो अभी कोरोना के लिए स्पेशली बहुत रिस्की हैं, उनमें हम खाना, स्लीप, हार्मोन्स, गट माइक्रोबायोम, इस पे काम करती हूँ मैं। आई स्टार्ट विद बेयर मिनिमम, एंड सब कुछ पर्सनलाइज्ड होता है। तो अगर आपकी मुझे हिस्ट्री पता चल जाती है, उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि आप क्या कर सकते हो और किससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, 4 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अपना खाना देखना है, अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, स्लीप देखना है और एक्सरसाइज देखनी है। और जैसे कि आप जानते हो, जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको सब पता होता है, बट दे हैव समबडी विद देम टू कीप देम ऑन ट्रैक व्हेन दे गेट ऑफ द वैगन। तो मेरी सीरियस रिक्वेस्ट है आप सबको कि प्लीज़ किसी को ढूंढिए ज़रूर जो कि आपके साथ आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए वेट कर पाए। डॉक्टर विश्वरूप्स डाइट्स, सो सी एवरीबडी हैज़ देयर ओन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मुझे बस ये चैलेंज है कि यार देयर इज़ नो वन थिंग विच फिट्स ऑल, राइट। सो इसलिए आप अगर वो करें तो प्लीज़ अपनी बॉडी को सुनते ज़रूर रहें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
ये मैं नहीं मान सकती हूँ कि एक ही चीज़ हर डायबिटिक को ठीक कर सकती है। और मुझे एलोपैथी में, आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर राइट, बट मुझे एलोपैथी में भी ये शिकायत थी हमेशा और अभी भी है कि हम कैसे सोचते हैं कि यार 4 दवाइयाँ हैं, वो उसी से सबका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। किसी का जेनेटिक है, किसी का स्ट्रेस है, किसी का टॉक्सिन्स है, किसी का गट माइक्रोबायोम है, किसी का कॉन्स्टिपेशन है। सो कॉज पे काम करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड होलिस्टिक वेलनेस इज द नीड ऑफ द डे। बर्ड्स एंड एनिमल्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे डॉग्स की स्पेशली बहुत लोग पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं डॉग से हमें डर तो नहीं है, नहीं है। फूड, स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड फोर्थ वन इज स्लीप। क्योंकि डॉग्स का माइक्रोबायोम ना अभी हम लोगों से ज़्यादा बैलेंस्ड है, और इनफैक्ट डॉग्स हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, राइट। बट हाँ, कुछ एनिमल्स से ही ये आया है, बैट से आया है ये, एंड वापस एनिमल्स में कब चला जाएगा यू डोंट नो। इंसोम्निया के लिए, इंसोम्निया के लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि एक तो 1 घंटा पहले टीवी या स्क्रीन मत देखें, रात को कुछ पढ़ने की आदत डालें, मेडिटेशन में घुसें, प्रेयर में घुसें, योग निद्रा करके अगर आप गूगल करेंगे यू विल गेट वेरी नाइस वीडियोस, वो बहुत हेल्प करती हैं आपकी। अपने बेडरूम में कोई भी टेक्नोलॉजी मत रखें, चार्जर्स वगैरह सब बाहर रखें बेडरूम से। बेडरूम बिल्कुल क्लीन रखें, जहाँ सोते हैं वहाँ काम की चीज़ ना हो तो अच्छा है। 5 बजे के बाद कैफीन, कॉफ़ी मत लें, चाय मत लें। खाना 4 घंटे पहले सोने से खाएं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर 2 हफ्ते में इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है तो प्लीज़ कंसल्ट समवन, क्योंकि फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है, एंड जो भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस्ड होगा हम उसको ठीक करेंगे एंड आपकी स्लीप ठीक हो जाएगी। एंड स्लीप में 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, दोनों के रीज़न अलग होते हैं। एक होता है आपको नींद आती नहीं है, और दूसरा होता है कि नींद आ जाती है पर 2-3 बजे खुल जाती है। सो बोथ हैव डिफरेंट चैलेंजेस, राइट। यूट्यूब चैनल नेम इज फूड, मेडिसिन एंड लाइज। तो मेरे यूट्यूब का पर्पस है कि व्हाट्सएप एंड गूगल में इतना इंफॉर्मेशन है कि पता ही नहीं है क्या ठीक है क्या गलत। तो इस यूट्यूब चैनल पे मैं एक्सपर्ट्स को लाकर बस ये लाना चाह रही हूँ। सी मैं ना 30 ईयर्स से मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। आई थिंक आई हैव 2 सन्स 25 एंड 23 ईयर्स। एक इनिंग में खेल चुकी हूँ, तो अब इस इनिंग में मेरा पर्पस या मिशन लाइफ में ये है कि मैं कैसे एम्पावर कर सकूँ आप सबको कि आप ठीक डिसीजंस ले पाओ। तो एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस चैनल, फूड, मेडिसिन एंड लाइज। Food, medicine and लाइज, okay. राइट। सो मैं मिथ्स लेती हूँ उसमें, एंड आई एम डॉक्टर, so you will get me on this. So another thing, anybody is cured diabetes by allopathy management. I have helped more than 300 patients stop their medicine completely. Now there was this patient, 72 years old, was on 80 units of insulin. 6 months she came to 4 units of insulin, and now for last 3 years she is not on insulin. So remember, diabetes, thyroid, hypertension, asthma, migraines, they are all life diseases. And if you can figure out cause क्या है, they are completely reversible. मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो मार्केट में रिवर्स कर रहे हैं। आपका काम है इस टाइम पे एक्शन लेना। Find your partner, find your buddy in this journey and just reverse your diseases. Just reverse your diseases. टाइप 1 डायबिटीज में भी डिपेंड करता है आप कितनी दूर तक हैं, काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है, काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है। Her sleeping time is very irregular. So if she starts getting up early, if she starts eating 4 hours before sleeping, if she starts stopping to use technology at 10 p.m., she will start to sleep early.
But she has to decide, not you. And she will get it. I have reversed by changing that. Definitely, I agree with you. I have reversed my diabetes. Right? In my family, everybody was 100 kgs plus. I was a diabetic when I was 38 years, and that just screwed my life. I was 87 kgs, a diabetic, a hypothyroid. I've reversed everything, and now I'm 64 and I'm on no medicines at all. So you know that, we can do it. So, Dr. Preeti, thank you. Thank you so much for a wonderful full session. I think each one of us here is blessed to have been there, and I'm sure each one of us will follow the so many tips that you have shared with us, and will connect to you on the blog post as well and YouTube channel as well. I would now be inviting the next speaker. Thank you. Thank you so much. Thank you so very much. So, to all the participants, I would just introduce you to our next speaker. I would call on Ms. Neelam Bakshi. Are you there? Mrs. Neelam Bakshi. I'm there. Hi, Mrs. Neelam Bakshi. Hello. So, once again, good morning, everyone. This is Ritu Saraf here. I'm a life coach and a youth breakthrough coach, and I'm part of the